A very good morning to all the students of class 8th. Dear students, how are you all? Good to see you back after a break. I hope you people are fine and taking good care of yourself and your family members too. Dear students, as you know, now it is school at your home. That doesn't mean that we will not be in proper uniform and discipline. All I want you to do is be in proper uniform, be in discipline whenever we have our classes. As sir has already told you all this on the PTM day. So dear students, I want that my class should be in proper uniform with their bags. Bags should carry their timetable as already shared with you. And all I need is discipline, proper discipline. Dear students, the thought of the day is don't see others as better than you. You should not see that people are better than you. Beat your own records. You can beat your own records. Like if you get 70%, say I'll get 75, then go to 80, 85, 90 and 100. So you can beat your own records every day and you will surely find success. And if you beat your records every day, it is sure that you will be successful one day. It is the fight between you and yourself. ये जो हमारी लड़ाई है, that is between you and yourself. ये आपकी लड़ाई अपने आप से है, किसी और से नहीं. You have to become a better person. So this is the fight between you and yourself. Dear students, on that note, I Neela Saini end with the chapter, the Delhi Sultans. We are on the end of this chapter. We had already done today in our live class, that was the chieftains and the fortification. We came till there. And dear students, please be good students as you were today. Some of you were not good, but all I want that everyone should maintain proper discipline in the class. No water, no washroom, no getting up in between. Are you allowed to do all these things in your school? So why don't we maintain the discipline as we were in our school? So dear students, in your NCERT book, page 40, this is chieftain and the fortification. Now, what is chieftains and the fortification? Large parts of the subcontinent remain outside the Delhi Sultanate. दिल्ली सुल्तान्स के बाहर बहुत सारा सबकॉन्टिनेंट था वहाँ पर. डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जो बहुत डिफिकल्ट था कंट्रोल करने के लिए. डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक, डिस्टेंट प्रोविंस मतलब जो प्रोविंसेस दूर थे हमसे, लाइक बंगाल असर्टेड इंडिपेंडेंस, बंगाल वगैरह की इंडिपेंडेंस असर्ट हो गई. Even in gigantic plains, sultans could not penetrate. That is the forest area. Local chieftains used forest areas. जो local chieftains थे वो forest areas use कर रहे थे for the fortification. Fortification themselves, fortify मतलब अपने आप को बन. आपको पता बेटा पहले राजा महाराजा जब लड़ाइयाँ करा करते थे तो वो लोग टेंट लगा के, फोर्टिफिकेशन टेंट लगा के कहीं पर भी रह जाते थे. माउंटेन्स के बीच में, आपने मूवीज में भी देखा होगा, माउंटेन्स में, रॉक्स के अंदर, इवन दो जो रग होते थे, वो जो रॉक साइट्स होते थे, उसमें बस उनको प्लेसेस चाहिए होते थे छुपने के लिए ताकि दुश्मन देख ना सके और हमला ना कर सके. तो लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर रहना, कवर्ड फ्रॉम बैम्बू ग्रूव्स. बैम्बू के जो ग्रूव्स होते हैं, जो बैम्बू के होलो होते हैं अंदर से, उसके अंदर भी वो जाकर छुप जाया करते थे. In this sense, they cannot be expected powerful army. इस वजह से ज़्यादा powerful army नहीं expect की जा सकती थी. Now the respond of the Mongol attack. This also we'll do shortly because we have done. The Mongol under Genghis Khan. Genghis Khan के अंदर जो मंगोल था, invaded Antoxicans in northeast Iran in 1290. नॉर्थ ईस्ट ईरान में इसने
ट्रांजिशन करा है नॉर्थ ईस्ट ईरान में इन 1290. They attacked on the दिल्ली सल्तनत. दिल्ली की जो सल्तनत थी उसमें उन्होंने अटैक किया. अंडर द रीजन, उस टाइम ये जो रीजन था वो अंडर था अलाउद्दीन खिलजी के. एंड मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के अंडर है. नाउ आपको दोनों सुल्तान की जो पिक है वो नेट पे भी दिख जाएगी. वी डोंट हैव इन आवर बुक. तो ये दोनों सुल्तान थे. दे वर वेरी पावरफुल. और इनका हम ये देखते हैं कि दो टू सुल्तान डील्स विद दीज. क्या क्या चीज़ों से डील करता है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे है. दैट इज पेज नंबर 41 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. पहला आते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी पर. दिल्ली वॉज अटैक्ड. दिल्ली को अटैक किया गया ट्वाइस इन 1299 एंड 1300 में. 2 बार अटैक किया गया एज डिफेंसिव मेजर. डिफेंस के मेजर पे लेते हुए अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. अलाउद्दीन खिलजी ने एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी अरेंज कर ली. ये था अलाउद्दीन खिलजी के अंडर. नाउ कम्स द मुगल. मुगल जो है तुगलक, उसने क्या किया, वो उसने सल्तनत को अपने को वॉज अटैक्ड. उसने अटैक हो गई थी जब अर्ली ईयर्स, जब था महमूदुद्दीन तुगलक था उस रीजन का लीडर. द मंगोल एरियाज वॉज डिफीटेड. जो मंगोल के एरियाज थे वो डिफीट हो गए. मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी. वो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. वो बहुत कॉन्फिडेंट थे. कॉन्फिडेंस मतलब कि यकीन होना, अपनी आर्मी पे उन्हें बिल्कुल विश्वास था. एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान. उसका जो रिसोर्सेज ऑफ टू प्लान एंड अटैक ऑन, उसका जो अटैक था ऑन ट्रांसेंस पर. ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडर्ड आर्मी. उसने एक लार्ज स्टैंडर्ड आर्मी खड़ी कर दी. अब आते हैं वापस हम अलाउद्दीन पे. अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू ग्रासन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स. उसने सीरी अपने सोल्जर्स के लिए एक लार्ज आर्मी वो जगह बना ली अपने सोल्जर्स के लिए. वो थी ग्रासन टाउन में. और अब मोहम्मद तुगलक के पास आते हैं. रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ग्रासन टाउन, रादर उसने ये अपना ये करने की जगह कि ग्रासन टाउन बनाने, कंस्ट्रक्ट करने की जगह, द ओल्डर ऑफ द 4 सिटीज ऑफ दिल्ली. जो 4 सिटीज ऑफ दिल्ली जो पुरानी थी, खोयाना was emptied of their residents and the soldiers garrisons there. The residents of the old cities were sent to the New Delhi of Dulabad in south. क्या किया उसने? फोर्टिफाई करने की जगह व्हाट डिड ही डू? मोहम्मद तुगलक ने ये किया, जो ओल्ड दिल्ली में लोग रहते थे ना उनको शिफ्ट कर दिया कैपिटल में न्यू दिल्ली में. और उन्होंने क्या किया कि अपने जो सोल्जर्स है उनको फोर्टिफाई किया ओल्ड जगहों पे. रादर देन कि मैं एक और नया ग्रासन टाउन बनाऊं, उसकी जगह उसने ऐसे यूटिलाइज किया कि मैं ये नहीं करूँगा फोर्टिफाई, मैं ओल्ड दिल्ली में फोर्टिफाई करूँगा 4 सिटीज़ में दिल्ली के. और जो ये है इनको भेज दिया उसने न्यू दिल्ली, न्यू कैपिटल ऑफ दुलाताबाद, जिसको हम जो है साउथ में. नाउ द सोल्जर्स हैड टू बी फेड. सोल्जर्स को भाई खाना भी खिलाओगे ना, सोल्जर ऐसे थोड़ी काम करते रहेंगे बिना खाए. दे वर डन थ्रू द produce collecting the taxes from lands between the गंगा and यमुना. गंगा और यमुना के बीच में ना टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे. टैक्सेस कलेक्ट करते थे वो सोल्जर्स के ताकि उनको फूड प्रोवाइड किया जाए. तो और जो टैक्सेस वो होते थे वो फिक्स थे. फिक्स कैसे थे? 50% ऑफ द पीजेंट्स जो भी उन्होंने प्रोड्यूस करा है उसका 50% वो था, वो उनकी फीडिंग के काम आता था. ये इट वॉज अंडर अलाउद्दीन खिलजी. अब हम आते हैं महमूदुद्दीन तुगलक की तरफ. महमूदुद्दीन तुगलक ऑल्सो, उसका कैसे प्रोडक्शन हुआ? प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम वॉज आर एरियाज. उसका भी प्रोडक्शन
फ्रॉम द सेम एरिया से कलेक्ट करे जाते थे एज टैक्स टू फीड द आर्मी। आर्मी को फीड करने के लिए उसने भी सेम एरिया से अपना कलेक्ट करना शुरू कर दिया टैक्स। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, द सुल्तान इतने लार्ज अमाउंट ऑफ एरियाज को मतलब आर्मी को फीड करने के लिए, देखो सोल्जर्स हैं तो हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको खाना भी अच्छा दोगे तभी तो अच्छे तरह करेंगे। लीव्ड एडिशनल टैक्सेस, तो उसको एडिशनल टैक्सेस की जरूरत पड़ी। दिस कंसीडर्ड विद फेमिन इन द एरिया, अब उसकी वजह से फेमिन हो गई। क्यों? एक ही जगह से वो भी टैक्स ले रहा है, वो भी टैक्स ले रहा है और वो एक्स्ट्रा टैक्स ले रहा है, तो क्या हो गया? भुखमरी, फैमिन। कैसे करते हैं? इट वो पीजेंट्स कहाँ से लाते हैं? पीजेंट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर वो सारा का सारा ऐसे ही दे देंगे 50 इधर 50 इधर और एक्स्ट्रा भी दे दिया, तो फेमिन तो आना ही है। हाउ कैन दे डू दैट? इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डू दैट। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, अब सोल्जर्स को पेमेंट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनको पेमेंट नहीं दोगे तो वो अपनी फैमिली को कैसे रन करेंगे। अब क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी चोज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरी इन कैश, क्योंकि सोल्जर्स अगर पेमेंट नहीं लेंगे तो उनकी फैमिली भूखी मर जाएंगी, वो कहाँ से खाना खाएंगे? वहाँ पर सिर्फ उनके खाने से पूरी फैमिली का खाना थोड़ी पूरा हो जाएगा। तो अलाउद्दीन ने क्या सोचा कि मैं अपने सोल्जर्स को पेमेंट इन कैश दूंगा, पैसे में दूंगा, रादर देन इक्ता की जगह मैं कैश दूंगा। द सोल्जर्स वुड बाय देयर supplies from merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would rather their prices. To stop this, Alauddin controlled the price of goods in Delhi. अब क्या, उसने पैसे दे दिए कि ये मर्चेंट से दिल्ली में जो मर्जी अपने लिए खरीद सकते हैं, जो सप्लीमेंट जो सप्लाईज चाहिए अलाउद्दीन कहता है खरीद लो। खरीदने के लिए फिर अलाउद्दीन ने ये भी किया, उसने प्राइस का जो गुड्स थे दिल्ली में उसको कंट्रोल किया कि कंट्रोल रेट में देना है मेरे सोल्जर्स को, क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ज़्यादा महंगी चीज़ें। परचेज वेयर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स और ऑफिसर्स ने केयरफुली उसको ऑब्जर्व किया कि क्या ये हो रहा है। हु डिड नॉट सेल एट द प्रिंसिपल रेट्स वर पनिश्ड, और जिन्होंने जो रेट्स डिसाइड हुए हैं कि भाई इनको कंट्रोल रेट में देना है, और जिसने उस बात को नहीं माना उनको पनिशमेंट दी जाती थी। दिस वॉज अंडर अलाउद्दीन खिलजी। अब वी कम टू महमूद तुगलक। महमूद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स इन कैश सैलरी, उसने भी अपने सोल्जर्स को कैश में पेमेंट करनी शुरू कर दी। बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस, बट उसने कंट्रोल प्राइस करने की जगह ही यूज्ड अ टोकन और अ करेंसी सम वॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर, ऐसे उसने पेपर के ना टोकन्स बनाने शुरू कर दिए या करेंसी, जिससे कि उसको चीपर अमाउंट पे, सम वॉट लाइक प्रेजेंट डेज करेंसी बट मेड आउट ऑफ चीप मटेरियल, वो चीप मटेरियल, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, चीप मटेरियल का बना होता था वो जो टोकन होता था, नॉट ऑफ द गोल्ड और द सिल्वर। पीपल इन द 14th century did not trust these coins, 14th century वाले लोग इस coins को नहीं ट्रस्ट करते थे। They were very smart, बहुत स्मार्ट थे वो लोग। They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with this token currency. उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने क्या किया? अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स रख दिए। ओके, तुगलक ने वो दिए हैं जो नो करेंसी, तो उन्होंने बाइंग और परचेजिंग के लिए वो यूज़ करना शुरू कर दिए कि भाई ठीक है इससे करते हैं। अब हम बहुत स्मार्ट निकले लोग कि नहीं चाहिए ना हमें, ठीक है तो आपका कैश प्राइस जब आप मान रहे हो कि इसकी वैल्यू है तो वील यूज़ दैट ओनली, तो उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। This cheap currency could also be easily available, easily और quantified बड़ी easily हो सकता था, तो इसलिए वो चीप करेंसी उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ अपना गोल्ड और सिल्वर। पहले तो आपको पता है डीलिंग विद गोल्ड एंड सिल्वर चलती थी, फिर उन्होंने इसको उसमें शुरू कर दिया
जो करेंसी मोहम्मद तुगलक ने दी. अब अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड chronicle praised his site for this cheaper price and efficient supplies of goods in the market. क्या हुआ, अलाउद्दीन की एडमिनिस्ट्रेशन क्वाइट सक्सेसफुल रही. क्यों? क्योंकि उसने जो चीपर प्राइस कर दिया उससे उन्हें फ़र्क पड़ा, लेकिन जो इसकी करेंसी बनाई थी मोहम्मद तुगलक से उससे कोई उनको फ़र्क पड़ा. फ़र्क क्या पड़ गया कि उन्होंने अपने गोल्ड सिल्वर रख लिया, जो उसकी करेंसी थी उसको यूज़ करने लग पड़े एज अ. तो इससे क्या हुआ, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेशन. तो उसने सक्सेसफुली मंगोल इन्वेशन को कर दिया. मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजरली वेन अ फेलियर. उस मोहम्मद तुगलक की जो थी वो फेल हो गई, जो एडमिनिस्ट्रेशन था. हिज कैंपेन्स इनटू कश्मीर वाज अ डिज़ास्टर. उसकी जो कैंपेन्स जो कैंपेन्स उसने किए कश्मीर में, वो एक डिज़ास्टर था. ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड. उसने फिर अपने प्लान्स दिए इन्वेड करने के लिए इन टॉक्सिस एंड देबन्स हिज लार्ज आर्मी. मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस. उसके जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज़ थे ना, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ गई. द शिफ्टिंग ऑफ पीपल, जो शिफ्ट उसने कर दिए थे लोग, जो उसने किए थे. ऊपर मैंने बताया था कि उसने फोर्टिफिकेशन नहीं, उसने वहाँ पर लोगों को, सोल्जर्स को नहीं स्टे कराया, उनके लिए ग्रेसम्स टाउन नहीं बनाए थे. उसने ओल्ड दिल्ली से लोगों को 4 जगह से निकाल के उनको नई दौलताबाद में इन साउथ में भेज दिया था. तो इससे अब वो प्रॉब्लम भी आ गई, और जो यमुना और गंगा से इसने जो पैसे कलेक्ट किए थे उसकी वजह से वो वाइड स्प्रेड रिबेल हो गया इसके अगेंस्ट. एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड. मतलब जो टोकन मनी है उसको फाइनली कैंसिल कर दिया गया कि भैया अब ये यूज़ नहीं होगी किसी भी तरीके से. अब आता है द सल्तनत इन द 16th and 15th century, 15th and 16th century. तो हम इसके इजीली पॉइंट्स में बात करेंगे. तो द तुगलक्स एंड द सैयद्स एंड द लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा. दिल्ली और आगरा से कौन कौन सी डायनेस्टीज थी? तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, दिल्ली एंड आगरा. अंटिल 1526 जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and entire South India had independent rules in this time. इस टाइम में इंडिपेंडेंट रूल, ये तो आगरा और दिल्ली जो है इन लोगों से ले दिया गया था, लोधी डायनेस्टी से, सैयद डायनेस्टी से और तुगलक डायनेस्टी से. लेकिन जो बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और जौनपुर जो था वो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे, उनकी अपनी सरकार थी. They established flourishing states and prosperous capitals. Period. So the emergency of new rules. फिर emergency किस चीज़ की हुई? New rules की. Ruling groups like the Afghans and the Rajputs. Afghans और Rajputs फिर ruling पे आ गए. Small but powerful and extremely well administered. फिर ये जो अफगान्स और जो राजपूत थे ये स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रूलर्स थे. शेरशाह सूरी स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ द स्मॉल टेरिटरी ऑफ हिज अंकल इन बिहार. जो शेरशाह सूरी है उसने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू की थी ना, अपने अंकल की एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते हुए शुरू करी थी. वो उसके स्मॉल टेरिटरी थी उसके अंकल की बिहार में. और फिर इवेंचुअली उसने क्या किया, चैलेंज कर दिया एंड डिफीट कर दिया उसने मंगोल्स को, मंगोल एम्पायर को. जो हुमायूं को उसने किया था वो था, दैट वाज इन 1530 to 1540, then 1555 to 1556. Last and the important point in this chapter, this portion is in the 15th and the 16th centuries. They captured Delhi and established his own dynasty. उसने क्या किया, कैप्चर कर लिया दिल्ली को और उसने अपनी ओन डायनेस्टी बनाई. सूर डायनेस्टी इसका नाम था, सूर डायनेस्टी. रूलर्स फ्रॉम 15th
years, that is 1940 to 1555, introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. Sher Shah's administration became the model of great emperor Akbar. जो वो शेर शाह सूरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मॉडर्न जो अकबर थे एम्परर उनकी ग्रेट वो बन गई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज इन 1556 to 1605 व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, जब उसने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट कर दिया. Now dear students, as we have completed this chapter, so we'll start with the key terms of the chapter. That is, first key term of the chapter is birthright. Birthright, अब birthright का क्या मतलब होता है? जो हमें right मिला जाए by birth, जो पैदाइश से ही हमें right मिला जाए. Privilege, privileges claimed on accounts of birth, मतलब पैदाइश के टाइम जो हमें प्रिविलेज मिले हैं. जैसे राजा के बेटे को राजा बनने का प्रिविलेज बाय बर्थ मिल जाता है, दैट इज द प्रिविलेज ही गेट्स. एग्जाम्पल इज फॉर पीपल बिलीविंग दैट नोबल्स, जैसे जो नोबल्स होते हैं, एग्जिबिट्स देयर राइट टू गवर्नेंस, मतलब नोबल्स ही गवर्नेंस कर सकते हैं, जो नोबल पर्सन नहीं है वो गवर्नेंस नहीं कर सकता. बिकॉज दे आर बॉर्न इन सर्टन फैमिलीज. जाके आपने हमेशा देखा होगा जो गोल्ड स्मिथ है उसका सन भी गोल्ड स्मिथ बनता है, और जो डायमंड मर्चेंट्स या जो बार्बर जो वो एक हेरिडिटरी चला आता है. सो दिस लाइक दिस की हेरिडिटरी डॉक्टर्स मोस्टली प्रेफर कि उनके बच्चे डॉक्टर बने. हाँ, दैट इज अनदर थिंग कि वो बनते हैं या नहीं बनते, बट इट इज बाय बर्थ. सेकेंड इज हिंडरलैंड. hinterland. It is a land adjacent to a city. A land adjacent to a city or port that supply it with goods and services. हिंडरलैंड होती है एक लैंड जो कि एडजेसेंट होती है, मतलब साथ में होती है सिटी के और किसी पोर्ट के, पोर्ट मतलब किनारा, दैट सप्लाइज इट विद गुड्स एंड सर्विसेज, जो उसको सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज से. तो दैट इज हिंडरलैंड. नाउ द थर्ड की टर्म इज द ग्रासिम टाउन. नाउ व्हाट इज द ग्रासिम टाउन? As we have done that, Alauddin Khilji, what he did, he had made a Grasim town for his soldiers, a fortification settlement with soldiers. Soldiers के लिए fortification के लिए जो settlement period होते हैं, Grasim town, fortification is a fortified settlement
with soldiers. जो फोर्टिफिकेशन है, जो ग्रासिम टर्म्स है, वो है एक फोर्टिफिकेशन सेटलमेंट विद सोल्जर्स. अब नेक्स्ट इज क्लाइंट्स. अब व्हाट, हु आर द क्लाइंट्स? Clients are someone who is under the protection of another. जो किसी के under protection में रहता है उसे कहा जाता है clients. ये उस टाइम की बात है. A dependent or a handler. तो client is someone who is under the protection of another a dependent or hanger on. That means dependent or hanger on means he is dependent or is on that person. So dear students, these are the 4 key terms. We will be doing the back exercise and the question answers in our next session. Thank you and have a nice day.